इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट स्टडी करने के दो अप्रोचेस हैं, एक एडीएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एक सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, उसको एसआई अप्रोच भी बोलते हैं। एक एक करके पहले एडीएस अप्रोच। तो एडीएस अप्रोच क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। एडी के क्या कंपोनेंट्स हैं? एडी के कंपोनेंट्स हैं सी प्लस आई। एएस के कंपोनेंट्स क्या है? C plus S. AS is also referred as Y, aggregate supply. According to Keynes, equilibrium level of national income is determined when AD is equal to AS. When AD is equal to AS, equilibrium is attained. अब एक ग्राफ बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? एडी एंड एएस। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एएस कर्व कैसा होता है? एएस कर्व कैसा होता है, ध्यान से देखना। एएस कर्व इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एएस कर्व इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एएस is represented by C plus S. Okay, origin, ठीक है, inclined at an angle of 45 degrees, ठीक है। AD curve starts from a point above the origin. AD curve starts from a point above the origin. ऐसा क्यों नद्या? Why does the AD curve start from a point above the origin? So because it takes into account the autonomous investment and autonomous consumption. Both, yeah, both. एडी में सी भी है, आई भी है। अगर मैं बात करता सिर्फ कंजम्पशन की, कि व्हाई डज कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ओरिजिन, देन द आंसर वाज बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। अभी मेरा क्वेश्चन था कि व्हाई डज एडी कर्व स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ओरिजिन? दैट इज बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एडी की शेप में किसी को कोई डाउट? ऐसी क्यों है? नहीं सर। ओके, तो इक्विलिब्रियम is attained when AD is equal to AS. In the figure, AD is the vertical summation of consumption and investment at each level of income. तो AD क्या है? C plus I at different level of income कितने कितनी हमारी consumption plus investment होगी। Consumption varies directly with income, मतलब higher the level of income, higher will be the level of consumption. Consumption varies directly, but investment expenditure is assumed to be independent of the level of income. इसका मतलब we assume that there is autonomous investment in the economy. ये सब जब भी आप explain करेंगे equilibrium, ये बातें लिखनी जरूरी होती हैं। Consumption varies directly with the level of income, but it is assumed that investment is only autonomous investment, so it remains constant. AS is the national income, which is the sum of consumption and savings. It is a positively sloping straight line drawn at an angle of 45 degree from the origin. Point E is the point of equilibrium or effective demand, where AD is equal to AS, or C plus I is equal to C plus S. If there is any deviation, the process of readjustment starts. यही तो सीखना है हमने. What happens when AD is more than AS? What happens when AD is less than AS? The process of readjustment starts and the output will tend to adjust
till the point AD becomes equal to AS. OY is the equilibrium level of income, and EY is the effective demand. Effective demand is the demand at equilibrium level of output given by the point AD is equal to AS. ध्यान से देखना किसकी बात हो रही है. OY is the equilibrium level of income. तो OY क्या हो जाएगा, इसकी बात हो रही है. OY और ठीक है, EY is the effective demand. ध्यान से देखना. ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा. OY इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम OY है, ये बात समझ आई. यस सर. डिमांड कितनी है इस लेवल पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना. ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट, छोटा सा पॉइंट बट इंटरेस्टिंग. ये जो है EY, ये इसको मैं इससे रिलेट कर सकता हूं. यही है ना EY, मतलब हाँ जी. मैग्नीट्यूड वाइज. मैग्नीट्यूड वाइज तो यही है EY. तो इस पॉइंट पे क्या शो कर रहा है ये, एग्रीगेट डिमांड. यस और नो. हाँ जी सर. वाई एक्सेस एग्रीगेट डिमांड शो कर रही है, EY इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. तो EY ये जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज योर effective demand. Effective demand is the aggregate demand at equilibrium level of income. तो अभी हमने पढ़ा equilibrium is attained when AD is equal to AS. अब हम स्टडी करेंगे what happens when AD is not equal to AS. Disequilibrium is more important to understand than equilibrium, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने पाएगा ना. व्हाट हैपेंस व्हेन AD इज मोर देन AS, व्हाट रीएडजस्टमेंट विल टेक प्लेस. एक एक करके करते हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन AD इज लेस देन AS, पहले AD ग्रेटर देन AS. अब ध्यान से देखना एक सिचुएशन. AD ग्रेटर देन AS. AD ग्रेटर देन AS मतलब ध्यान से देखना, ग्राफ विजिबल है आपको. हाँ जी सर. 2 मिनट लगेंगे, मैं जल्दी से आपको एक और बना कर दिखाता हूं. ध्यान से देखना. ओके, एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट. वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, AD एंड AS. ठीक है, ध्यान से देखना. AS कर्व क्या है, 45 डिग्री लाइन. AS कर्व ये छोटे सारे प्लॉटिंग जरूर करना. ठीक है, और कौन सा कलर दिखेगा ग्रीन पे, चलो ब्लैक ही रहने देते हैं. AD कैसा है, ऐसा है. ओके, AD इज इक्वल टू C+I. अब ध्यान से देखना, क्या सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. व्हाट हैपेंस व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS. तो AD is greater than AS मतलब aggregate demand curve will be above AS curve. Yes or no? यस सर. तो कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट ले लो टू द लेफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो. अब ध्यान से देखना, मैं ये पॉइंट ले लेता हूं. ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना. एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. दिख रहा है. यस सर. What happens when aggregate demand is more than aggregate supply? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है.
producers will be motivated to produce more. Yes or no? Yes, sir. प्राइसेस कांस्टेंट है तो प्राइसेस हम बढ़ा नहीं सकते, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप आउटपुट बढ़ाओ। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट में ऑपरेट कर रहे होते तो क्या हम आउटपुट बढ़ा सकते थे? नहीं, सर। फुल एम्प्लॉयमेंट में हम आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, तो ये बहुत बड़ी अजम्पशन थी कि हम शॉर्ट रन एनालिसिस में ऑपरेट कर रहे हैं, अभी हमने फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं करा होगा, तो मतलब हमारे पास स्कोप होगा आउटपुट बढ़ाने का। लॉजिक समझ आया? यस, सर। तो क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स, दे विल इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आप यहाँ ऑपरेट कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इक्विलिब्रियम अटेन करना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वो आउटपुट बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, आउटपुट उतना है नहीं। आउटपुट बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करेंगे और रिसोर्सेज हायर करेंगे, तो उससे और जॉब्स क्रिएट होंगी, और जॉब्स क्रिएट होंगी, लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा। So what happens when AD is greater than AS? The producers increase the level of output. To increase the level of output, they hire more factors of production. It leads to an increase in national income. ध्यान से देखना, what happens when aggregate demand is greater than aggregate supply? Suppose AD is greater than AS. It means that the buyers are planning to buy more goods and services than what the producers are planning to produce. This creates a situation of excess demand. हम यहाँ ये वर्ड यूज कर रहे हैं, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन एक्सेस डिमांड, तो वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होता, वो इन्फ्लेशनरी गैप का पॉइंट होता है, डिफरेंट है। यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस। यहाँ पे टर्म यूज करी जाती है कि एडी इज ग्रेटर देन एएस, तो मतलब डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। बट जब अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना डिफाइन एक्सेस डिमांड, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होता है, वो जब आएगा तब करेंगे। बट मैं अभी बस आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में जो एक्सेस डिमांड आता है, अलग से अगर क्वेश्चन आता है, दे आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशनरी गैप। Inflationary gap happens at full employment level of income. Deflationary gap happens at full employment level of income. वो अलग एस्पेक्ट्स है। अभी हम इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में हम शॉर्ट रन में फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हुआ है। बट इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस, तो इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, शॉर्टेज है, प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, उन्होंने एक इन्वेंट्री मेंटेन करी हुई थी, बट डिमांड बढ़ी तो वो इन्वेंट्री डिस्पोज ऑफ हुई, द लेवल ऑफ इन्वेंट्री फॉल्स बिलो द डिजायर्ड लेवल। सारे प्रोड्यूसर्स अपना एक रेडी स्टॉक ऑफ गुड्स मेंटेन कर रखते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं, बट अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो बिक जाएगा ना। तो द लेवल ऑफ इन्वेंट्री व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, इट मींस दैट द बायर्स आर बाइंग फास्टर देन व्हाट द सेलर्स एंटिसिपेटेड। इन दिस सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्वेंट्रीज स्टार्ट फॉलिंग एंड कम बिलो द desired level. To bring back the inventories at the desired level, producers expand production. अब ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ऐड होना चाहिए, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये, इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आपको एक लाइन और क्वालिटी एनहांस कर देगा आपको आपके आंसर की। टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, producers will hire more factors of production, will hire more factors of production. This will increase the level, this will increase the level of employment, this will increase the level of employment in the economy, this will increase the level of employment in the economy। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं यहां से, दिस रेजेस द इनकम लेवल। प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, रिसोर्सेज और यूज करने पड़ेंगे, लोग और एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, लोग और एम्प्लॉय करोगे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनकम लेवल बढ़ेगा नेशन का।
which keeps on rising till AD and AS once again become equal. This brings the economy back in equilibrium. तो अगर वन लाइनर क्वेश्चन में क्रिएट करना चाहूं, so when AD is greater than AS, national income tends to rise. National income tends to rise when AD is greater than AS. तो अलग से अगर क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ ऐसे बना के आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट हैपेंस व्हेन AD इज लेस देन AS. ध्यान से देखना. तो ग्राफ तो खैर सिंपल सा है बट बनाता हूं दोबारा. ध्यान से देखना. y एक्सिस पे AD and AS, level of income, output and employment. ठीक है. AS curve 45 डिग्री लाइन. ठीक है जी. AS represented by y is equal to C plus S. 45 डिग्री लाइन. AS आ गया. AD बना देते हैं. AD aggregate demand is equal to C plus I. ओके. अब ध्यान से देखना. कोई भी दो पॉइंट्स ले लो. अब AD is less than AS, तो टेक अ पॉइंट टू द राइट हैंड साइड ऑफ इक्विलिब्रियम. तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, हमें यहाँ पहुंचना है. तो ध्यान से प्लॉटिंग उस हिसाब से करना. ओके. क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं? व्हाट हैपेंस व्हेन AD इज लेस देन AS. एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई. तो ध्यान से देखना. AD is less than AS. AD कितना था? इतना. AS कितना था? इतना. डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है. तो क्या होगा? अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ जाएगा. द लेवल ऑफ इन्वेंट्री विल राइज. इट विल extend to a level which is beyond the desired level. अनसोल्ड स्टॉक आपका अक्यूमुलेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है. आप प्राइसेस कम नहीं कर सकते अपना सामान निकालने के लिए. अजम्पशन है कि प्राइस लेवल रिमेन्स कांस्टेंट. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना लेवल ऑफ आउटपुट रिड्यूस करना पड़ेगा. लेवल ऑफ आउटपुट रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे आप? यू विल ले ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. when you lay off factors of production, the level of employment starts falling. So when the level of employment starts falling, the level of income starts falling. You will continue to lay off factors of production till the time aggregate demand becomes equal to the aggregate supply. Explanation बिल्कुल लॉजिकल है, तो दिक्कत नहीं होगी, बट यूज कीवर्ड्स. What happens when AD is less than AS? Now suppose AD is, पहले हमने बोला AD is greater than AS. Now suppose AD is less than AS. It means buyers are planning to buy. Use the keywords planning to buy less than what the sellers are planning to produce. This creates a situation of deficient demand. Aggregate demand is less than the aggregate supply. As a result, inventories start rising and move above the desired level. Consequently, producers cut back on production and lay off workers. This reduces the income level. The downward trend continues till AD and AS once again become equal. This brings the economy back in equilibrium. To conclude, we can say that it is only and only when AD is equal to AS that the
economy is in equilibrium. Economy or the income of the economy is in equilibrium. At this point, there is no tendency of the producers to increase or reduce supply. तो अगर वो वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो when AD is less than AS, national income tends to fall. National income tends to fall when AD is greater than AS. तो हमने क्या पढ़ा? Determination of equilibrium level of income using AD-AS approach. इसमें हमने सारे ग्राफ समझे. What happens when AD is greater than AS? What happens when AD is less than AS? And not just the graphs, the readjustment of output that takes place when aggregate demand is not equal to aggregate supply. पहले आप इतना रीड करेंगे, फिर मैं आपको इक्विलिब्रियम कराऊंगा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का. लॉजिक एग्जैक्टली सेम रहेगा कि what happens when there is excess demand, what happens when there is deficient demand. लॉजिक सेम रहेगा, टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है when you're using the saving investment approach. Then you talk about savings and investments और disinvestment, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी. रीएडजस्टमेंट का प्रोसेस चेंज नहीं होगा. ठीक है ना? तो पहले आप एक बार एडीएस पढ़ो, फिर मैं आपको एसआई अप्रोच कराता हूं. ध्यान से देखिए.